Okay, let's begin. In this video, we will discuss about tenses. We will see the overview of all the tenses by the medium of a chart that is drawn by us. And अगर आपको ज़रूरत लगती हो कि इस चार्ट को अपने आप से लिख लीजिए तो फिर लिख लीजिएगा, देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग है, शायद मैंने देखा अभी, तो उस मिसप्रिंटिंग को भी जो है अभी मैं बता दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। अपने आप जब अपना लिखने लगिएगा तो उसमें सही कर लीजिएगा। ओके, सो here we are going to discuss all the tenses, that is present tenses, and that is present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Here past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. In the same way here we have written all these things. So the main thing in the tenses is helping verb and main verb. If we are memorizing all the helping verbs and main verbs of the all 12 tenses, then it is very easy to learn the tenses. Okay, so what is helping verb? Helping verbs are those verbs just as like I am giving some examples. So do, does, did, is, am, are, was, were, will, shall, did, will, shall. Okay, these are have, has, had. These are the helping verbs. And main verbs, there are three types of main verbs. Sorry, three form of main verb mainly, but there are two other forms of main verb also, such as we are verb first form, verb second form, and verb third form. Just for example, we use eat, ate, eaten. Okay, go, went, gone. These are the first, second, and third form of the verb main verb. But there are also two other form, that is verb SAES form, S/ES form, and another form is ing form. So these are also very important. So we can say that there are 5 forms of verb main verb. Okay, now now I am going to discuss all these tenses in very short. Okay, we will just discuss about its main verb and helping verbs. Okay, so in the present tense, present indefinite tense, okay, the main verb is first form and verb S/ES form. Okay, but the helping verb is do and does. The helping verb of the present indefinite tense is do/does, and the main verb is verb first form and verb SES form. Always remember do, does, did. Do, does, did, will, shall. I repeat, do, does, did, will, shall. Not will have, shall have been, or will be, shall be. I am just saying will and shall. Do, does, did, will, shall. All these will carry verb first form. Means इनके साथ हमेशा verb की first form होगी, nothing else. Whenever we will see, जहाँ पर भी हम देखेंगे do, does, did, will, shall, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी. ओके, सो डू, डज, डिड, विल, शैल, यहाँ पे यहीं पे मिसप्रिंटिंग है कि डू, डज और डज के साथ, डू हमेशा प्लूरल के साथ यूज किया जाता है और डज सिंगुलर के साथ. तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा. आई रिपीट, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्शन है यहाँ पे. ओके, जैसे कि हमने भी बताया आपको, डू किसके साथ यूज होता है. जैसे डू यू नो, डू यू नो हम लोग पहले सुने हो ना, आई डोंट नो, आई डोंट नो. तो आई एंड प्लूरल, यू क्या है, प्लूरल है. सो आई एंड प्लूरल, प्लूरल क्या होते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्लावर्स, यू, दे, वे में बहुत सारे लोग आ जाएंगे. जैसे दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं. तो दे जो होते हैं उनके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो सिंगुलर और प्लूरल हम इसमें नहीं डिस्कस करेंगे, बस इतना जान लीजिए कि डू का कहाँ यूज होता है, आई और प्लूरल के साथ. और डज का यूज कहाँ होता है, हमारा डज का जो हमारे पास यूज होता है वो होता है सिंगुलर के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट सा, जैसे ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है. ओके, ही डज नॉट नो. ठीक, सो आई थिंक डू एंड डज वहाँ पे मिस्टेक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा. ओके, सो तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है हमारे पास, उसकी जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, वो डू और डज होती है. कहाँ पर डू लगेगी, कहाँ पर डज लगेगी. इसके बाद हम थोड़ा बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव और पास्ट टेंस का अफर्मेटिव थोड़ा सा डिफरेंट है और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है. और सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते ही हैं, तो इसमें
पहले से ही हम लोग जाने रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस या यस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा जो है प्लूरल के साथ यूज किया जाता है, और जो वर्ब का एस या यस फॉर्म होता है वो सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट से ही सी इट नेम, ही सी इट नेम यानी किसी का नाम हो, वो चीज़ें हमारे सिंगुलर के साथ वो सब सिंगुलर होती हैं। उसके साथ ही वर्ब का यस या ईएस फॉर्म, जैसे ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, मीन्स ही गोज टू मार्केट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है प्लूरल के साथ यूज होता है, जैसे दे गो, नॉट दे गोज इज रॉन्ग, दे गो इज राइट, ओके। सो वी आर मूविंग टुवर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस हियर। द मेन थिंग इज दैट in the past indefinite tense, the structure of affirmative sentence is subject plus verb second form plus object, okay. इट इज़ द only टेंस वेयर वर्ब सेकंड फॉर्म इज यूज, और कहीं पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ओके। सो सब्जेक्ट वी ऑल नो अबाउट व्हाट इज सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म यूज होता है प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे वह गया, ही वेंट, वह बाजार गया, ही वेंट टू द मार्केट। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है वो हमेशा डिड होती है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया है, डू डज डिड और विल सेल के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, चाहे जहाँ देख लीजिएगा, ओके। और यहाँ पे हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, केवल वर्ब की हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है, ओके। वनले वर्ब की हमारे पास होती है सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म V2, नॉट बी स्क्वायर, V2। सो इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, helping verb of the future indefinite tense is will and shall, okay. And I have already told you all that with do does did and will shall we always use what, verb first form. So the main verb of the future indefinite tense is first form of the verb. Now we will discuss about where we can use shall and where we use will, okay. So will, just 1 minute, will use in modern English I always we always used to use will, okay। हम हमेशा अधिकतर जगह will ही यूज कर देते हैं। सेल को जो है यूज कहाँ पे किया जाता है, और will को सेल को यूज किया जाता है आई और बी के साथ, ओके, आई एंड बी। जैसे बी सेल गो टू पिकनिक टुमारो, हम कल पिकनिक मनाने जाएंगे। एंड द वन थिंग इज will इज यूज विथ all these except these things like plural okay, I and B is also plural, and this plural, just wait, I am just going to clear. B in modern English, B do not use will and shall, okay. B just use, this if you have to give, written I will, then we will write I and double L, that is the short form, okay. So if you are writing in English, then avoid these things, just use these things, okay. It is correct, it is completely correct, and it is completely correct, okay. So we should write this, avoid using these things. I am not saying that it is wrong, but I am just saying that इसे यूज करने से बचिए, ओके। तो सो जैसे आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, ओके, हमें कल स्कूल जाना चाहिए, ऐसे करके। और बाकी जो है, और बाकी जो भी जो आई और बी के साथ शैल यूज कीजिए, बाकी जो भी चीज़ें हमारे पास बचे, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो जो है, जैसे रमेश विल गो देयर, ही विल गो देयर, ही विल eat the food, okay. So I think it's clear now. Where is that slide? It is here, okay, we found that. Will shall, okay. So shall is used with I and B, and will is used with everything except I and B. सो मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है, वही होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अफर्मेटिव सेंटेंस एंड ऑफ फ्यूचर टेंस। सो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई विल गो देयर, आई सब्जेक्ट, विल
helping verb, and go is verb first form, their object and other things. In negative sentence there is not in use. So if we have to write anywhere, then not will come after helping verb and before main verb. Okay, after helping verb, जैसे आई एम जस्ट टेलिंग यू, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सब्जेक्ट है. ओके, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. सब्जेक्ट तो तीनों टेंस में होते हैं. ठीक है, बिना सब्जेक्ट के तो बहुत ही कम रेयर केस में ऐसा कोई होता है कि मतलब ऐसा कहीं भी होता ही नहीं है जहाँ पे सब्जेक्ट ना हो और हम टेंस बना दें या फिर सेंटेंस बना दें. सब्जेक्ट हर जगह यूज होता है. जैसे यहाँ तक कि इफ बी व्हेन योर टीचर सेड दैट सिट डाउन, स्टैंड अप, देन whom he is saying, जैसे इफ ही सेइंग स्टैंड अप मीन्स स्टैंड अप. अब कह दो यहाँ खड़े हो जाओ. अब खड़े हो जाओ जैसे टीचर ने कहा तो उन्होंने कहा स्टैंड अप. तो अब यहाँ पे क्या है, कह रहे हो सब्जेक्ट है ही नहीं. ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट है. मीन्स सब्जेक्ट यहाँ पर छुपा हुआ है, वो सब्जेक्ट है यू. ओके, अगर भाई टीचर कहेगी तो तुम्हें ही तो कहेगी और किसी कहेगी. ठीक, सो आई थिंक यू कुड अंडरस्टैंड दिस थिंग. सब्जेक्ट हर जगह होता है. सो जो भी हमारे पास टेंस होते हैं, जो भी हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, इंडिफिनिट के तीनों इंडिफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है. हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वहाँ पे डू डज होगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड होगा, और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल शैल होगा. इसके बाद हमारे पास होता है नॉट. ओके, नॉट. ये तीनों टेंस की प्रेजेंट, तीनों इंडेफिनिट की है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एज वेल एज फ्यूचर इंडेफिनिट. उसके बाद आता है हमारे पास मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप. फुल स्टॉप इज नेसेसरी इन पंक्चुएशन. ओके, so whenever we write anything, we will if we the sentence is negative or affirmative, then we will have to put a full stop. And if the sentence is negative, then we interrogative, then we have to interrogative or interrogative negative, then we have to write a question mark. Okay, so 1 minute, it is here. नेगेटिव सेंटेंस की हमने बात कर ली. सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर नॉट होता है, फिर वर्ब मेन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर थिंग्स. इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास डू डज होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर देखिए. अब इसके विषय में हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे. जैसे भी हमारे पास होता है ये जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव के विषय में चर्चा कर रहे हैं, रिमेंबर. ओके, वी आर आस्किंग, नो डिस्कार्ड these things. 1 minute, end session. This is here. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. ओके, हम कहाँ पे थे, हम थे यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, सो इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव जो हमारे पास होता है वो दो टाइप्स का होता है. एक होता है फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप. फर्स्ट टाइप में हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, जैसे क्या, कैसे, कब, ये सब चीज़ें पहले आ जाती हैं. जैसे क्या वह जाएगा, ओके, क्या वह खाता है. तो अगर ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं, जैसे क्या, कब, कैसे, ये सब अगर पहले आ जाएं तो उसको फर्स्ट टाइप में रखते हैं. तो ऐसे सेंटेंस के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है हेल्पिंग वर्ब. ओके, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. देन फिर क्या होता है लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी. ओके, एंड द सेकंड टाइप इज व्हाट इज द सेकंड टाइप. सेकंड टाइप जो होती है हमारे पास इंट्रोगेटिव की, टाइप 2 जो हमारे पास होती है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, जैसे वह कहाँ जाता है. ओके, ऐसे सेंटेंस में जो है क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आए, क्वेश्चन वर्ड जो होता है हमारे पास जब बीच में आए तो उसमें जो है जैसे वह कहाँ जाता है, वह क्या खाता है, वह क्या पीता है,
ऐसे सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड की जो भी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इसको WH टाइप भी कहते हैं। टाइप 2 को क्या कहते हैं, WH टाइप। और जो टाइप 1 था हमारे पास, उसको यस नो टाइप क्वेश्चन, जैसे क्या वह खाता है, यस ही ईट, बस बात खत्म हो गई। वह क्या खाता है, तो इसमें यस नो नहीं बोल सकते ना, इसमें तो हम पूरा बोलेंगे कि हाँ वह ये खाता है, वो खाता है, सेब खाता है, ठीक। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू डच, पास्ट इंडेफिनिट है देन डी, एंड इफ इट इज फ्यूचर इंडेफिनिट देन बी विल यूज व्हाट, विल एंड शैल। ओके, देन क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं पता ही होना चाहिए, आप लोग को बताए भी हैं अभी, जिसके विषय में हम चर्चा किए होते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो डज ही, ओके, व्हाट डज ही नो मीन्स वर्ब यहाँ पे आती है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर ना याद करने से अच्छा है कि एक एग्जाम्पल याद कर लें अगर सभी का, तो हम स्ट्रक्चर अपने आप से ही बना सकते हैं ना। देन वी विल अदर थिंग्स, ओके, वाट एवर वी हैव, स्कूल कॉलेज, ठीक है, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, देन प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, आई थिंक यू कुड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, आई एम ट्राइंग बेस्ट माई, ओके, वट एवर द थिंग्स आर, okay, these are, so I think I have discussed all these things here of the present indefinite, past indefinite and future indefinite. Now color change कर दें क्या, black, okay, then in past present, sorry, present continuous tense the main helping verb is MR। मेन हेल्पिंग वर्ब देखिए, तीनों कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज होगी, तीनों कॉन्टिन्यूअस में, और तीनों कॉन्टिन्यूअस में जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज MR, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब वाज वर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब दैट इज बिल ऑब्लिक शैल प्लस बी ई, ओके, वी विल डिस्कस इन अनदर क्लासेस अबाउट बी मीन्स होना होता है, ठीक है। सो बी मतलब होता है होना, होना, अरे हा हा पे ओ की मात्रा, ना ना पे आ की मात्रा। सो अब इसके विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट प्लस इज MR, फिर वर्ब की आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होता है तो इज MR प्लस नॉट लग जाता है, ठीक, देन वर्ब की आईएनजी। हम इसके पहले भी बता चुके हैं, कहाँ गई वो, लेकिन मिलेगी नहीं वो, ठीक है, अरे स्लाइड की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारे पास होता है वो, जैसे हमारे पास है एज, ये कलर अच्छा है, एज MR, इसके बाद हमारे पास आती है वर्ब की आईएनजी। चलो देख लेते हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज होती है। इज हमेशा किसके साथ यूज होगा, जैसे ही इज गोइंग ना, तो सिंगुलर के साथ, किसके, सिंगुलर के साथ। एम हमेशा किसके साथ यूज होगा, आई के साथ, और किसी के साथ एम नहीं यूज होगा। आर किसके साथ होगा हमेशा, है प्लूरल के साथ, ओके। ये हमारे पास जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसके विषय में हम बता रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस में जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, चाहे जैसा कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ओके। सो इज MR कहाँ कहाँ पर यूज होता है इसके विषय में मैंने बता ही दिया, इट इज ऑल। सो यस वी आर हेयर, इज MR प्लस व्हाट, वर्ब आईएनजी। इन नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम कभी भी यूज करते हैं, जैसे अगर हमारे पास है तो हम क्या यूज करेंगे, जैसे नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करने के बाद हम यूज करेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट, फिर उसके बाद हम यूज करेंगे मेन वर्ब। ये स्ट्रक्चर हमेशा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट, आई थिंक इट्स एनफ नाउ। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, चाहे जैसा नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, स्ट्रक्चर वही रहेगा, ठीक है। सो अब जैसे हमने बताया था यहाँ पे कि, अरे पेंसिल मिल जाए भाई, समवन इज कॉलिंग,
but it is on DND mode. Why? Okay, 1 minute. So now spirit destructions. Okay, here then subject plus HMR, and here subject plus was verb, and here subject plus will be plus shall be, then not plus be. Okay, negative sentence is completed now. And in interrogative sentences there are two types. I have already told you, but that is questionable type, and that another type is yes no type. Then in WH टाइप क्वेश्चन, दैट इज टाइप 2, पहले हम टाइप 1 के बारे में बात कर लें। तो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म देख लें, नहीं तो दिख रहा होगा नहीं इसमें, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट टू पुट अप अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर, ओके। और उसके बाद फिर वाज वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट प्लस बी सैल, ओके। यहाँ पर हम जो लिखते हैं, जैसे यहाँ पे सैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे यहाँ पर डब्ल्यूएच टाइप में क्या करते हैं, पहले एक कोई भी, जैसे क्या राम नहीं जा, सॉरी राम कहाँ जा रहा है, तो वेयर राम इज गोइंग, नहीं वेयर इज राम गोइंग, ओके, वेयर इज राम गोइंग। ऐसे यहाँ पर वेयर वाज राम गोइंग, ठीक। इन दिस वे नाउ इट इज परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की मेन वर्ब जो होती है, जो प्रेजेंट परफेक्ट होती है वो हैज हैव होती है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट की जो होती है हैव हैज होती है, पास्ट परफेक्ट की हैड होती है, और इसमें जो होती है विल शैल हैव, विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव होती है, ठीक है। इसकी मेन वर्ब तीनों की, परफेक्ट कोई भी टेंस हो उसमें हमेशा जो है, हमेशा, हमेशा मीन्स ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है हैव, कहाँ पर यूज करते हैं, हैज कहाँ पर यूज करते हैं, हैड की कोई टेंशन नहीं है, ओके। और बिल सेल कहाँ पर यूज किया जाता है, बिल सेल हैव कहाँ, सॉरी बिल ऑब्लिक सेल और प्लस हैव कहाँ पर यूज किया जाता है, जहाँ पर बिल यूज करेंगे वहाँ पर बिल हैव यूज करेंगे, जहाँ पर सेल यूज करेंगे वहाँ पर सेल हैव यूज करेंगे। दिक्कत है यहाँ पे हैव और हैज की, ओके। हैव, तो है भैया हमेशा प्लूरल के साथ, प्लूरल एंड आई, ओके। और हैज को हमेशा सिंगुलर के साथ, किसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा यूज किया जाता है, ओके। सो इट इज़ क्लियर नाउ। हैड कहाँ पर यूज होता है, हैड अकेले है ही बेचारा, वो कहाँ पर यूज किया जाएगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, कुछ और यूज कर दे, और कुछ यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास होती है हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन। हैव हैज कहाँ यूज किया जाता है, हमने अभी तुरंत बताया, उसी के साथ बीन लगा देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी सबसे जानकारी वाली बात होती है, इसमें पहचान कैसे की जाती है, इसमें जो है हमेशा टाइम दिया रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह काम प्रेजेंट में हो रहा हो और उसमें टाइम भी दिया जा रहा हो। जैसे वह सुबह से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है, ठीक है, ही इज कंप्लीटिंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग। तो हैव हैज कहाँ पर यूज किया, लेकिन सिंस और फॉर यहाँ पर आ जाता है, और प्लस टाइम रहता है, तो जो सिंस होता है हमेशा डेफिनेट टाइम के लिए यूज किया जाता है। सिंस कैसे यूज किया जाता है, फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बारे में हम जानते हो, ठीक, जैसे डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। और जो फॉर होता है वो हमारे पास इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए यूज होता है, किसके लिए, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, इनडेफिनिट। जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय, सब लंबा समय, कितना लंबा समय ये तो हमें क्लियर है नहीं, ठीक, सुबह से, ठीक, सिंस मॉर्निंग, ठीक, सिंस 1980, ओके। जैसे हम लोग कहीं कुछ ब्रांड खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है ना कि दिस इंस्टीट्यूशन इज रन सिंस, या फिर इंस्टीट्यूशन क्या कुछ भी देखते हैं उसमें लिखा रहता है सिंस 1940, सिंस 1980, सिंस 1991, है ना। तो उसमें टाइम पीरियड दिखा है, लिखा है, डेफिनेट है वो, 1990 लिखा है तो 1990 है,
उसके अलावा कुछ थोड़ी ना है। लेकिन अगर जैसे इनडेफिनिट टाइम पीरियड होता है उसके लिए फॉर यूज करते हैं हम। ओके, सो हेयर बी आर, तो यहाँ पे हैव और इसमें टाइम भी दिया रहता है, हैव हैज बीन रहता है। अब इसमें हमारे पास जो ये होता है इसमें हैड बीन रहता है प्लस वर्ब किया है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों की मेन वर्ब आईएनजी वाली होती है, ठीक है। और तीनों परफेक्ट की वर्ब की थर्ड फॉर्म, और तीनों कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी मेन फॉर्म, वर्ब की फॉर्म होती है। और इंडिफिनिट तीनों का हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। ऐसे क्लियरिटी बनाए रखिए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमें अगर याद रहती है तो हम सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है हमें पहचान करना कौन सा टेंस में काम चल रहा है, कौन सा टेंस में काम चल रहा है, लोग हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि कौन काम पहले हो गया, कौन काम अब हो रहा है और कौन काम होगा, ठीक। तीनों तीनों के विषय में है यहाँ पे। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल, विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव बीन, ओके, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बता दिया, सेंस फॉर कहाँ यूज होता है ये भी बता दिया गया है, ठीक है। अगर इस सब चीज़ों को अगर ठीक से देख लेंगे तो सब सही हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक। आई थिंक इट इज़ नॉट कंप्लीट बट इट इज़ इनफ, ओके, पूरा तो नहीं है लेकिन पर्याप्त है, इसमें सब कुछ लिखा ही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिएगा, चाहे वट एवर यू वांट टू राइट, और अगर दिमाग तेज है तो रहने दीजिए, पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात है तो ठीक है। देन वी आर हेयर नाउ इन, जो हम शुरू करने वाले हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस में देखिए कलर थोड़ा चेंज कर देना। चलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, काला काला अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ काला ही रहेगा। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर यस फॉर्म यूज होती है। ये क्या हो गया यार, हमने ये ले लिया, चलो ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर यस फॉर्म होती है। अब फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर यूज किया जाती है, यस फॉर्म कहाँ पर यूज की जाती है, ये होती है सिंगुलर के साथ, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये किसके साथ होती है, ये होती है हमारे साथ प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ। और हेल्प मेन वर्ब, और डू हमारे पास कहाँ पे होता है, डू हमारे पास कहाँ पे होता है हेल्पिंग वर्ब में, ये हमारे पास होता है प्लूरल के साथ। और डच किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक। अब कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, वाक्य अंत में ता है ती है, कक्षा अच्छा से पढ़ाया जाता है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट ना मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इसमें देखिए हम बात करेंगे तीनों सेंटेंस के विषय में, थोड़ा थोड़ा एक एग्जाम्पल देखेंगे, तीन क्या चार हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एग्जाम्पल की मदद से समझना सबसे अच्छा होता है इंग्लिश को, ठीक है। ज़्यादा रूल्स पर देखेंगे, स्ट्रक्चर ध्यान देंगे, हर चीज़ ध्यान देते रहेंगे, नहीं, कोई मतलब नहीं उनका, सिर्फ एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल के बाद जो है भाई मुझे जैसे समझ में आता है मैं उससे बता रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही समझा था। तो एग्जाम्पल एक दो जब 8-10 एग्जाम्पल एक ही चीज़ के याद रखेंगे तो हम जान जाएंगे कि हाँ ऐसा ही होगा ना। तो एग्जाम्पल की मदद से ज़रूरी होता है। जैसे इसमें लिखा है आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स पर, विभिन्न विभिन्न टॉपिक्स पर मैं आर्टिकल लिखता हूँ,